ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں دوسرے سیزن کے 7ویں ایپیسوڈ کا مکمل احوال۔ کیا گلدارو کے جانبازوں پر منگولوں کا کامیاب حملہ ہو جائے گا؟ کیا شہناز خاتون کی عالیہ خاتون سے لفظی جنگ ہوگی؟ کیا حمزہ اور عبد الرحمن پر لگائے غداری کے الزام درست ہیں؟ گلدارو تیمور کے سامنے بھیگی بلی کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، آگے آپ دیکھیں گے گلدارو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ہم ریان کے ممکنہ راستے کے قریب ہیں۔ پھر تیمور کہتا ہے 2 لوگوں کو سراغ کے لیے بھیج دیں جو بہت تیز ہوں اور قابل ہوں۔ پھر گلدارو عبد الرحمن اور حمزہ کو کہتا ہے تم ان لوگوں کا سراغ لگانے جاؤ، وہ کافر کہیں سے بھی نمودار ہو سکتے ہیں، ہم بغیر تیاری کہیں ان کے شکنجے میں نہ آ جائیں۔ جس پر دونوں کہتے ہیں جی میرے آقا، پھر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب منگول کماندار کہتا ہے مجھے گلدارو اور تیمور کا سر چاہیے، یہاں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہ جائے۔ ناظرین، پھر آپ آگے دیکھیں گے حلیمہ کام کر رہی ہوتی ہے، جس پر عالیہ کہتی ہے حلیمہ سلطان تمہیں زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے عالیہ خاتون کام کر کے میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس طرح ارطغرل کا انتظار کرنا میرے لیے آسان ہے۔ جس پر عالیہ کہتی ہے تیمور اور گلدارو تمہارے ارطغرل کا بدلہ لیں گے۔ ناظرین، پھر عالیہ روشنی سے پوچھتی ہے ارطغرل کس قسم کا جنگجو تھا، میں کبھی اسے ملی نہیں۔ جس پر روشنی بتاتی ہے عالیہ خاتون ارطغرل ہمارے قبیلے کی امید تھا، آئی قبیلے نے جو مشکلات دیکھی ارطغرل نے ہمیں ان مشکلات سے باہر نکالا۔ پھر عالیہ کہتی ہے میں نے سنا تھا کہ ان سازشوں میں تمہاری بہن بھی شامل تھی، مگر بعد میں اس نے معافی مانگ لی۔ جس پر روشنی بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، پھر شہناز عالیہ کے پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے میں تم جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، تم اچھا ہونے کا دکھاوا کرتی ہو مگر تم اصل میں ہو نہیں۔ جس پر عالیہ کہتی ہے شہناز لگتا ہے تمہیں اس چیز کا بہت زیادہ تجربہ ہے کیونکہ تم تو بدترین گناہگار ہو۔ پھر شہناز کہتی ہے ہماری خواتین خصوصاً روشنی اور حلیمہ سے دور رہو، اپنی زہریلی زبان قابو میں رکھو۔ ناظرین، پھر آپ آگے دیکھیں گے ارطغرل منگولوں کی قید سے فرار ہو کر گھوڑے پر بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اچانک بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ پھر ارطغرل منگولوں کو مار دیتا ہے، پھر پیچھے اور بھی منگول آ جاتے ہیں، پھر ارطغرل جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب گلدارو اور اس کے ساتھی گھات لگائے ہوتے ہیں۔ پھر گلدارو کہتا ہے مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ جس پر نورگل کہتا ہے مجھے چین سے کھانا نصیب نہیں ہوگا جب تک وہ بغیرت لوگ زندہ سلامت ہیں۔ پھر گلدارو کہتا ہے عبد الرحمن اور حمزہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ پھر روشان آ کر بتاتا ہے آقا وہ منگول آ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ارطغرل نڈھال ہوتا ہے اور منگولوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر ارطغرل گر جاتا ہے۔ دوسری طرف تیمور اور گلدارو کے جانباز گھات لگائے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اچانک منگول سپاہی دریا کی طرف آ جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر سب جانباز تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، مگر یہ دیکھ کر گلدارو اور اس کے جانباز کافی پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی بھی منگول گھوڑے سے نہیں گرتا۔ جس پر گلدارو کہتا ہے رکو۔ ناظرین، دوسری جانب منگول سپاہی ارطغرل پر تلوار چلا رہا ہوتا ہے، پھر اچانک پیچھے سے غنی آ جاتا ہے جو منگول کی کمر میں نوکیلا ڈنڈا گھونپ کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ پھر غنی ارطغرل کو کہتا ہے اے بہادر جوان، ہمیں بھاگنا ہوگا، تم میں جو بھی تھوڑی بہت ہمت رہ گئی ہے۔ پھر غنی ارطغرل کو سہارا لگا کر بھاگتا ہے۔ دوسری طرف گلدارو دیکھتا ہے تو وہ گھوڑے پر سوار پتلے ہوتے ہیں جو کہ منگولوں کی چال ہوتی ہے۔ پھر اچانک پانی کے اندر سے منگول لٹیرے نمودار ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر گلدارو کہتا ہے چھپ جاؤ، جہاں وہ منگول سب پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب غنی ارطغرل کو بڑی مشکلوں سے نکال کر لے جا رہا ہوتا ہے اور ان کے پیچھے منگول لگے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب تیمور گلدارو کو کہتا ہے بھائی ہم میں کوئی بھیدی ہے۔ جس پر گلدارو کہتا ہے تیمور یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جس پر تیمور کہتا ہے وہ جانتے تھے کہ ہم یہاں ہیں، ہم نے ان کی گھات لگائی اور انہوں نے ہم پر گھات لگا کر حملہ کر دیا، سب ایک جال تھا۔ دوسری طرف کوچابش خود کو زخمی کر لیتا ہے تاکہ اس کو منگولوں کے سامنے نہ جانا پڑے۔ پھر دوسری جانب تیمور گلدارو کو کہتا ہے بھائی میرے خیال میں غدار تمہارے جوانوں میں سے ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ لڑائی میں نہیں ہیں، میرے آدھے جوان مر گئے یا زخمی ہیں۔
जिस पर गुलदारू मंगोल कैदी वाला वाकया याद करता है जो कि हमजा की गफलत से फायदा उठाकर कोचाबिश ने दिल्ली दमीर के हाथों मरवा दिया था, जिस पर गुलदारू को यकीन हो जाता है कि हमजा ही गद्दार है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अर्तगल गनी को कहता है, मुझे यहाँ छोड़ दो, तुम भाग जाओ, मेरी वजह से तुम भी मारे जाओगे। जिस पर गनी अर्तगल को हिम्मत देता है और कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, बस थोड़ा सा रह गया है। दूसरी तरफ मंगोल और गुलदारू की फौजें आमने सामने आ जाती हैं। फिर मार्का शुरू हो जाता है, जहां तैमूर और गुलदारू बड़ी बहादुरी से मंगोलों के बकिए उधेड़ते हैं। दूसरी जानिब रोशान और नूरगुल को चारों तरफ से मंगोल घेर लेते हैं, जहां दिल्ली दमीर आकर तीरों की बौछार कर देता है। फिर वो तीनों हक है अल्लाह का नारा लगाकर मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं, जहां रोशान की तलवार से मंगोलों का खून झड़ता है, नूरगुल के कुल्हाड़े से मंगोलों की कब्रें खुदती हैं। दूसरी तरफ कोचाबिश छुप कर लेटा होता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब मंगोल कमांडर अर्तगल को ढूंढ रहा होता है, जहाँ गनी अर्तगल को हिम्मत देते हुए कहता है, हिम्मत करो, बस चंद कदम रह गए, बस फिर हम महफूज है। वो एक मकाम पर आकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। दूसरी जानिब गुलदारू जवां मर्दी से लड़ते हुए और फिर मंगोलों को जहन्नुम की राह दिखाता है। नूरगुल, रोशान और दिल्ली दमीर अपनी शुजाअत के झंडे गाड़ रहे होते हैं। दूसरी जानिब मंगोल कमांडर कहता है, फिल्मों के निशानात से लगता है इस तरफ गया है। वो अर्तगल और गनी के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। वो एक मंगोल की लाश देखते हैं, जिस पर वो मंगोल सिपाही कहता है, इस आदमी को जानता हूँ, मेरे आका ये 3 दिन से गायब है। इस पर कमांडर कहता है, इसका मतलब है अर्तगल अकेला नहीं है, किसी ने हमारे पड़ाव की जासूसी की है, ढूंढो इन्हें, जाओ। नाज़रीन, दूसरी जानिब तैमूर मंगोलों को ठिकाने लगा रहा होता है। दूसरी तरफ नूरगुल और रोशान अपना बेहतरीन जंगजू होने का सबूत देते हुए काफिरों को काट रहे होते हैं और कोचाबिश छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी जानिब गनी अर्तगल को कहता है, तुमने उन शैतानों के जुल्म को डट कर बर्दाश्त किया, थोड़ा और सब्र रखो। दूसरी तरफ नूरगुल दिल्ली दमीर से कहता है, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर दमीर कहता है, शहीद होने के अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। बारतोलो सब मंगोल को मरते देखकर भाग रहा होता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे सरदार खुशनूद हाइमा खातून को कहता है, वो शैतान की तलाश में है, कोई मामूली नहीं है, हमारे बच्चे हमारे कबीले का मुस्तकबिल है। हाइमा वो मौके की मुनासबत से ही कोई कदम उठाएंगे। गुलदारू सोचे समझे बगैर कोई काम नहीं करेगा। दूसरी जानिब दिल्ली दमीर बारतोलो को पकड़ लेता है और गला दबाता है। गुलदारू भी वहाँ आ जाता है तो कहता है, रुक जाए दिल्ली दमीर, हमें ये जिंदा चाहिए, हमें गद्दार का पता लग सकता है। दमीर उसका गला छोड़ देता है, गुलदारू उसको गिरफ्तार कर लेता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब हाइमा खातून सरदार खुशनूद को कहती है, हमने दोनों कबीलों को इकट्ठा कर दिया, मगर भाई ये इतना आसान नहीं होगा। इस पर खुशनूद कहता है, क्यों हाइमा, तुम ये क्यों कह रही हो? इस पर हाइमा कहती है, दोनों कबीलों ने अपनी चौकी एक ही जगह बनाई है, तुम्हारे ख्याल में सबसे ज्यादा गजबनाक कौन होगा? इस पर खुशनूद कहता है, नोयान। हाइमा कहती है, वो हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा, हम दाखिली और खारजी मामलात में उलझे रहे। तो खुशनूद कहता है, वो दखल अंदाजी करेगा, वो हमें आसानी से जिंदा भी नहीं रहने देगा। नाज़रीन, आप आगे देखेंगे रोशान और नूरगुल अपने जख्मी जांबाजों के जख्मों पर दरख्त के पत्ते बांधते हैं। तैमूर गुलदारू को कहता है, हम में से किसी ने हमें धोखा दिया है, उसने नोयान की मदद की। इस पर गुलदारू कहता है, ऐसा कौन करेगा, ये जानकर भी उस हमले की जद में वो खुद भी आ जाएगा। जिस पर कोचाबिश कहता है, शायद वो लोग गद्दार हो तो इस वक्त हमारे साथ नहीं। तैमूर कहता है, हमजा और अब्दुर्रहमान सुराग रसानी के लिए गए, अगर अभी तक नहीं लौटे। तो कोचाबिश कहता है, वो इसीलिए सुराग रसानी के लिए गए, बज़ाहिर उन्हें पता था यहाँ कुछ होने वाला है। इस पर रोशान गुस्से में बोलता है, पास बंद कर नालायक, हर वक्त बकवास करना, कोई सीधी बात नहीं की तुमने। तो कोचाबिश कहता है, अगर बात तुम्हारे आका की नहीं होती, मैं तुमसे इस बात की भारी कीमत वसूल करता। इस पर रोशान और कोचाबिश भिड़ जाते हैं, तो गुलदारू के रोकने पर रुक जाते हैं। दूसरी जानिब हाइमा खातून सरदार खुशनूद को अर्तगल की खूबियां बताती है। बेशुमार दुश्मनों के साथ लड़ाइयों के बाद अर्तगल एक जबरदस्त जंगजू बनकर उभरा। हलब में जिस तरह उसने अयूबियों से सियासत की, सलीबियों के खिलाफ उसकी जंग,
उसने जंग का फन सीखा। सबसे बढ़कर वो दोस्त और दुश्मन की पहचान रखता है। भाई तैमूर अभी इन महारतों में बहुत पीछे है। इस पर सरदार खुशनोद मुस्कुरा कर बताता है, अहमद तैमूर भी मंगोलों के खिलाफ बहुत लड़ा है, फिक्र न करो, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। हाइमा कहती है, फिर भी ये इतना आसान नहीं होगा। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे हमजा और अब्दुर्रहमान गुलदारू के पास आकर कहते हैं, पक्का आप ठीक तो हैं? हमजा कहता है, वो नोयान बुज़दिल कहाँ है? इस पर गुलदारू कहता है, हम लोग कहाँ थे? हमजा कहता है, पक्का आप ही ने तो हमें सुराग रसानी के लिए भेजा था। जिस पर तैमूर गुलदारू को कहता है, भाई मैं इनसे पूछगछ करता हूँ। अब्दुर्रहमान कहता है, ऐसी पूछगछ, आका ये क्या कह रहे हैं? गुलदारू कहता है, अपने आका तैमूर के सवालों के जवाब दो। इस पर हमजा कहता है, आका क्या आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रहे हैं? गुलदारू बगैर कुछ जवाब दिए वहाँ से आगे निकल जाता है। दिली दमीर को कहता है, दिली दमीर मदाखलत न करना। दमीर कहता है, वो हमारे प्यारे हैं, हम उनको चाहते हैं। इस पर गुलदारू कहता है, दुगलू भी ऐसा ही था। नाज़रीन, दूसरी जानिब गनी अर्तगल को कहता है, उनको ले जाने का इंतजाम करता हूँ। फिर वो अर्तगल को अपनी कमर पर उठा ले जाता है। दूसरी तरफ खुशनोद हाइमा को कहता है, दो बहादुर जंगजू, दोनों के साथ बहादुर जांबाज, अगर मामूली सी भी कोई लड़ाई हुई ये खाना जंगी में तब्दील हो जाएगी। इस पर हाइमा कहती हैं, भाई इसी चीज से तो मैं खौफजदा हूँ। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे तैमूर हमजा और अब्दुर्रहमान पर बेदर्दी से तशद्दुद करता है, उन्हें मार मार के लहू लहान कर देता है। दूसरी तरफ गुलदारू तैमूर के आगे भीगी बिल्ली बना होता है। यहाँ रोशान और नूरगुल काफी गुस्से में होते हैं। जिस पर दिली दमीर कहता है, दिए गए हुक्म की तामील करो। रोशान कहता है, ये कैसा हुक्म है और कौन इस हुक्म को मान सकता है? दूसरी तरफ तैमूर चिल्लाकर बोलता है, हमें नोयान के आगे किसने बेचा? या तो तुम दोनों इसमें मुलविस हो। जिस पर हमजा कहता है, मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, मेरे आका को बुलाओ। तैमूर कहता है, बेवकूफ इंसान, तुम्हारे आका को भी तुम पर एतबार नहीं, तुमको नजर नहीं आता जो मंगोल पकड़ कर लाए थे उसे अकेला तुमने छोड़ा। तुमने दिली दमीर को उसे मारने दिया, क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते थे वो कुछ बोले। हमजा कहता है, मेरे सब्र का इम्तिहान न लो, मुझे गद्दार नहीं कह सकते। तैमूर कहता है, तू क्या तुम अपने आका नोयान को जाकर बताओगे? तैमूर उन दोनों पर बहुत बड़ा जुल्म करता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हाइमा खुशनूद से कहती है, नोयान हमें मारने के अलावा और कुछ नहीं करेगा, हम अपनी कब्रें खुद खोदेंगे। नाज़रीन, ये था दूसरे सीजन के 7वें एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। आगे क्या होने जा रहा है तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपको अर्तगल की तमाम एपिसोड मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।